Hello everyone, in this video we will talk about semaphore. So what is semaphore? Semaphore is an integer variable which is used to solve the problem of process synchronization. In the last video I told you about the cooperative process. Cooperative process are those processes which share something common or which share resources, variables, and these are common to lot of process. Lot of process you try to use those variable or using those variable or resources. So semaphore is that procedure or that kind of thing which is used to handle those cooperative process to synchronize, right? So the exact definition is a semaphore is an integer variable or abstract data type used to control access to a common resources by multiple process in order to achieve process synchronization. This variable can be accessed through standard operation, that is atomic operation. What is that? Means when that procedure or that operation is running, then no procedure or no process can preempt those process. Means that operation is not preempted. That completes its execution. That is atomic operation. So here are two basic operation, two standard operation, that is P or V. Or we can write P as down or wait, and we can write V as up and signal. Means if you write P, then we write V. If we write down, then we write up. If we write wait, then we write signal. Wait के अपोजिट में सिग्नल लिखेंगे, डाउन के अपोजिट में अप लिखेंगे, पी के अपोजिट में वी लिखेंगे, right? Now what happens? In critical section, in the last video I told you the critical section, there are two things, that is entry section and exit section. When some process, if some process try to enter into critical section, that process must run the entry section, and if process completes the execution of critical section, then they will execute exit section. Then after exiting, the process will execute remainder section. So here wait and signal is basically entry and exit section. When process try to enter into critical section, that entry section will be executed. That entry section is wait. That means the process must run wait procedure to enter into critical section. That is in previous video I have written as entry. So that entry is basically wait. तो किसी भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए वेट प्रोसीजर या वेट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. इफ वेट ऑपरेशन परमिट्स दैट प्रोसेस, देन ओनली द प्रोसेस एंटर इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन. तभी वो एंटर कर पाएगा अपने क्रिटिकल सेक्शन में, यदि वेट ऑपरेशन उसको परमिट करता है तो. अब वो एंट्री सेक्शन में के थ्रू वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया. क्रिटिकल सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद, वो रिसोर्सेज को यूज करने के बाद, जो भी शेयरेबल रिसोर्सेज है, जो भी आपके वेरिएबल है, उसको यूज करने के बाद वो एग्जिट करेगा. प्रोसेस विल ट्राई टू एग्जिट. तो एग्जिट करने के लिए वो एग्जिट सेक्शन चलाएगा. एग्जिट सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? सिग्नल. ये सिग्नल उसको परमिट करेगा बाहर आने के लिए, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आने के लिए. और वो जब बाहर आ जाएगा तो अपना रिमाइंडर सेक्शन चला के कंप्लीट करेगा. अब इसी समय जब आपका प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में है, उसी समय एक दूसरा प्रोसेस P2 वो भी ट्राई कर रहा है. किसके लिए? क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए, क्योंकि उसको भी वो रिसोर्स की जरूरत है, उस वेरिएबल की जरूरत है. तो वो भी ट्राई करेगा एंटर करने के लिए. तो वो अपना एंट्री सेक्शन चलाएगा, मतलब वो वेट सिग्नल या वेट प्रोसीजर या वेट ऑपरेशन को चलाएगा. अब इस वेट ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो प्रोसेस P2 क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा या नहीं. यदि ये वेट ऑपरेशन P2 को परमिट करता है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, तो ही ये प्रोसेस P2 है वो क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा, अदरवाइज नहीं, राइट. वैसे ही मोर देन 2 प्रोसेस, यदि हमारे पास 4-5 कॉन्करेंट प्रोसेस है, तो वो P3, P4 दे ऑल में एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन जब आपका वेट ऑपरेशन उसको परमिट कर देगा. यदि वो वेट ऑपरेशन उसको परमिट नहीं करेगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए, तो कोई भी प्रोसेस P1 के अलावा कोई भी प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा, राइट. नाउ मूव फर्दर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीमाफोर. वन इज काउंटिंग सीमाफोर, वन इज बाइनरी सीमाफोर. काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू -∞ से +∞ तक हो सकती है.
पर बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू केवल 0 या 1 होगी, जैसे कि नाम है बाइनरी, तो वैल्यू कैन बी ओनली 0 और 1, बट काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी लाई कर सकती है, राइट। नाउ विल सी काउंटिंग सीमाफोर फर्स्ट। हियर आई हैव रिटन काउंटिंग सीमाफोर। काउंटिंग सीमाफोर में वेट और सिग्नल ऑपरेशन का जो डेफिनेशन है वो ये है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ वेट ऑपरेशन एंड दिस इज डेफिनेशन ऑफ सिग्नल ऑपरेशन। हियर सीमाफोर एस, सीमाफोर इज a structure. Here there is a integer value and there is a QL, right? इन दोनों का हम यूज करते हैं। यहाँ पर वेट में सीमाफोर का हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहे हैं 1 से। यहाँ पर इनिशियली जो वैल्यू है आपकी जो भी होगी सीमाफोर की वैल्यू क्या होगी, इनिशियली 1 से डिक्रीमेंट, पहले ही हमने इसको डिक्रीमेंट कर दिया यहाँ पर, और उसके बाद वी आर चेकिंग वेदर द वैल्यू ऑफ सीमाफोर वैल्यू इज लेस देन 0 और नॉट। यदि एस की वैल्यू यदि 0 से कम है, मतलब दिस कंडीशन इज ट्रू, इफ दिस कंडीशन विल ट्रू देन व्हाट विल डू, वी पुट अ प्रोसेस इन सस्पेंडेड लिस्ट। यदि एस की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो हम क्या करेंगे, जो प्रोसेस जो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है उसको हम किसमें डाल देंगे, ब्लॉक लिस्ट में या फिर सस्पेंडेड लिस्ट में डाल देंगे। तो यहाँ पर यदि ये कंडीशन ट्रू हुई तो अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज रिटर्न हो जाएगा, मतलब प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। मतलब कि यदि ये आपका वैल्यू, यदि कोई प्रोसेस ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं करता है और वो रिटर्न करके और क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता है, तो हम इसको कहते हैं सक्सेसफुल ऑपरेशन। क्या कहते हैं, सक्सेसफुल ऑपरेशन, राइट। और यदि ये कंडीशन ट्रू हुई और हमने किसी प्रोसेस को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया तो वो क्या कहलाएगा, अनसक्सेसफुल ऑपरेशन, राइट। नाउ व्हाट इज सिग्नल, सिग्नल डेफिनेशन ऑफ सिग्नल इज दैट, एंड पहले ही हमने क्या कर दिया, पहले स्टेप में हमने सीमाफोर की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया और उसके बाद हमने चेक किया कि यदि एस की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है, यदि एस की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 ट्रू हुई तो हम क्या करेंगे, उस ब्लॉक लिस्ट से जो हमने, हमारे पास जो ब्लॉक लिस्ट है, सस्पेंडेड लिस्ट है जो मेमोरी में कहीं पड़ा हुआ है, यदि उसमें कोई प्रोसेस है तो हम पहले उस प्रोसेस को क्या करेंगे, वेकअप कर देंगे, मतलब कि हम उसको जगा देंगे और क्या कर देंगे, रेडी क्यू में डाल देंगे और उसको ये कहेंगे कि भाई यू कैन ट्राई फॉर द क्रिटिकल सेक्शन, अब आप क्रिटिकल सेक्शन के लिए ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम वेकअप के थ्रू उसको वेकअप कर देंगे। यहाँ पर कोई सिस्टम, कोई प्रोसेस यदि ये कंडीशन ट्रू हुई तो उस प्रोसेस को हम थ्रू स्लीप क्या कर देंगे, ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे या सस्पेंडेड लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो ये आपका वेट ऑपरेशन हो गया और ये हो गया सिग्नल ऑपरेशन। नाउ विल सी दिस टू ऑपरेशन विथ एग्जांपल। सपोज देयर इज अ सीमाफोर वैल्यू, वी इनिशियलाइज विथ 3, राइट। वी कैन इनिशियलाइज एनी वैल्यू, यहाँ पर जैसे दिखा आप देख ही रहे हैं, तो कोई भी वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये इसका जो एस इक्वल टू 3 कोई भी वैल्यू है, इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पर अभी एस की वैल्यू 3 है और हमारे पास सपोज 2 प्रोसेस है P1 और P2, और P1 और P2 दोनों कोशिश कर रहे हैं। सपोज पहला P1 आया तो P1 इज ट्राई टू गेट इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। तो यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पर एस की वैल्यू जब P1 इस कोड को चलाएगा, मतलब वो वेट एस को चलाएगा, तो वेट एस यहाँ पर है, यहाँ पर वो एग्जीक्यूट होगा। तो जब ये वेट एग्जीक्यूट होगा तो एस की वैल्यू क्या होगी, 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगी। मतलब यहाँ पर हमने एस की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर दिया और क्या कर दिया, 2, राइट। अब ये 2 एस की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट हो गई, मतलब ये आपका यहाँ पर 2 हो गया। और यहाँ पर हमने क्या चेक किया, देखिए एस वैल्यू इज लेस देन 0, क्या 2 की वैल्यू लेस देन 0 है, नहीं, ठीक है। यहाँ पर 2 की वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ये आपका ये जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब ये आपका रिटर्न हो जाएगा और प्रोसेस P1 किसमें चला जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। सपोज दिस इज योर क्रिटिकल सेक्शन, राइट। तो ये क्रिटिकल सेक्शन में हमने प्रोसेस P1 को रख दिया ना। अनदर प्रोसेस का, अब ये क्रिटिकल सेक्शन में है, क्रिटिकल सेक्शन में अपना काम कर रहा है ना। सेकंड प्रोसेस विच इज ऑल्सो ट्राई टू गेट इनटू क्रिटिकल सेक्शन, अब वो इसी कोड को चलाएगा। देखिए यहाँ पर ये वेट है तो इसी कोड को चलाएगा, इस कोड को चलाएगा तो उसको यहाँ पर एस की वैल्यू क्या मिलेगी, एस की वैल्यू इसको 2 मिलेगी। अब 2 के
टू वैल्यू यहाँ पर एस की वैल्यू टू जो 1 से माइनस हो जाएगा तो क्या जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ ये वैल्यू चेक होगी, एस की वैल्यू 1 से चेक होगी, तो एस वैल्यूज नॉट लेस देन 0, मतलब ये आपका कंडीशन फिर से क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया इसका मतलब कि ये रिटर्न करके क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, मतलब सक्सेसफुल ऑपरेशन। सक्सेसफुल ऑपरेशन मतलब आपका P2 क्रिटिकल सेक्शन में चला गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक से ज्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि आपके पास जो रिसोर्सेज है उसकी मल्टीपल कॉपीज हैं, ठीक है, या ऐसा कोई रिसोर्स है जो कि ये इसके पास है और ये जो प्रोसेस ट्राई कर रहा है, सपोज कोई दूसरा रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि हम कुछ रिसोर्सेज को यूज कर रहे होते हैं और मे बी दैट रिसोर्सेज में शेयरेबल, कोई प्रोसेस को शेयर कर सकता है। तो हो सकता है कि हमारे पास एक से ज्यादा रिसोर्सेज या सेम रिसोर्सेज के डिफरेंट इंस्टेंसेस हो, तो P2 कैन ऑल्सो बी एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन, राइट। नाउ आफ्टर दिस टू, दो प्रोसेस क्यू में है, क्यू में एग्जीक्यूट होके मतलब प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए क्रिटिकल सेक्शन में चले गए। बिटवीन कोई तीसरा प्रोसेस आता है P3, और P3 भी अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो वो भी सपोज ये P3 है, तो ये भी आप इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको एंटर क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, एंटर होना है, तो वो इस कोड को चलाएगा, राइट। जब इस कोड को चलाएगा तो उसको एस की वैल्यू क्या मिलेगी, अभी यहाँ पर 1, तो वो क्या करेगा, पहले तो एस की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करके 0 कर देगा, और हम यहाँ पर चेक करेंगे अभी आपका क्या है, ये वैल्यू, यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 थी, तो 0 इज लेस देन 0, दिस कंडीशन विल बिकम फॉल्स, दिस 0 इज नॉट लेस देन 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो फॉल्स हो गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपकी वैल्यू है रिटर्न, इसमें आके वो क्या होगा, प्रोसेस जो P3 है वो भी अपने क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कंडीशन फॉल्स है ना, 0 इज लेस देन 0, तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो जो आपका प्रोसेस P3 है दैट इज ऑल्सो मे एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, राइट। तो अब हमारे पास 3 प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन में रखे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हमने एस को किससे इनिशियलाइज किया था, 3 से इनिशियलाइज किया था, राइट। अब देखिए कोई और फोर्थ प्रोसेस, सपोज कोई प्रोसेस P4 आया एग्जीक्यूशन के लिए, और अब वो ये वेट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, तो अब वेट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो अभी इसको एस की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। तो यहाँ पर जब 0 को यहाँ पर वो 0 -1 करेगा, यहाँ पर ये 0 है ना, तो 0 -1 करेगा तो ये -1। अब ये देखिए -1 इज लेस देन 0, राइट, -1 इज लेस देन 0, तो क्या हो गया, वो राइट हो गया। अब राइट हो गया तो ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा ना, तो ये वाला जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो P4 किसमें चला जाएगा, P4 चला जाएगा वेटिंग रूम में, या इसको हम वेटिंग रूम भी कह सकते हैं, ब्लॉक लिस्ट भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको सस्पेंड लिस्ट कह सकते हैं। तो यहाँ वेटिंग रूम में चला जाएगा, ये वेटिंग फॉर द क्रिटिकल सेक्शन, तो वेटिंग रूम में ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये मैं जो कहना चाह रही थी कि जो आपकी सीमाफोर की वैल्यू शुरू में जो आप इनिशियलाइज करते हो, जैसे आपने एस की वैल्यू 3 से इनिशियलाइज किया, तो इसका ये मतलब है कि एट ए टाइम देयर मे बी 3 प्रोसेस मे बी इन द क्रिटिकल सेक्शन। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एस की वैल्यू यदि 3 है तो 3 प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन में हो सकती है, राइट। अब यहाँ पर देखिए एस की वैल्यू क्या होगी, -1। अब यहाँ पर एस की वैल्यू -1 है ना, 1, तो 1 यहाँ पर देखिए एक प्रोसेस है ब्लॉक लिस्ट में, इसका मतलब है कि यदि नेगेटिव में एस की वैल्यू जितनी नेगेटिव में रहेगी उतना आपका प्रोसेस किसमें रहेगा, ब्लॉक लिस्ट में या वेटिंग रूम में। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक और प्रोसेस सपोज P5 भी आया, P5 ने भी कोशिश किया क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, उसने क्या किया, वेट को चलाया। वेट को जब चलाएगा तो यहाँ पर ये जो वैल्यू थी आपकी -1 और -1 कितना हो गया, -1 में -1 को आप करोगे तो ये हो जाएगा -2, तो ये हो गया -2 इज लेस देन 0, यस, ये 0 कंडीशन ट्रू हो गई। तो ट्रू के कंडीशन में क्या कर रहे हैं, प्रोसेस इन द सस्पेंड लिस्ट, इस P5 को भी हमने क्या कर दिया, सस्पेंड लिस्ट में या ब्लॉक लिस्ट में या फिर वेटिंग रूम में डाल दिया, राइट। नाउ अगेन यू कैन चेक कि एस की वैल्यू -2 है, मतलब यहाँ पर 2 है ना, तो 2 प्रोसेस आर देयर इन द ब्लॉक लिस्ट। सो जितना प्लस में आपकी वैल्यू होगी उतने प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होंगे, और जितने एस की वैल्यू माइनस में होगी उतने आपके ब्लॉक लिस्ट में होंगे, राइट। अब P1 is completed its execution of critical section portion। P1 ने अपना क्रिटिकल सेक्शन खत्म किया, अब वो क्या करेगा, बाहर आने की कोशिश करेगा, जा सकता है।
पर जाने के लिए उसको क्या चलाना पड़ेगा, एग्जिट सेक्शन, और एग्जिट सेक्शन में है सिग्नल, सिग्नल का कोड ये है। तो सिग्नल में हम क्या करते हैं, पहले हमने एस की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट किया, मतलब यहाँ पर जो -2 था, अब वो एस की वैल्यू देखिए -2, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देते हैं -2, तो -2 से क्या हो जाएगा, -2 + 1 मतलब ये हो जाएगा -1, ठीक है। -1 के बाद ये इसको हम चेक करते हैं, क्या लिखा है कि इफ एस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 0, यस, -1 इज लेस देन 0, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो यदि ट्रू होती है तो क्या करते हैं, सेलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंड लिस्ट एंड वेकअप। इसको हमने क्या किया, सस्पेंड लिस्ट में यहाँ पर पहले P4 आया था, फिर P5, तो यहाँ पर हम कैसे कंसीडर करेंगे, किस मैनर में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आपके ब्लॉक लिस्ट में आया है हम पहले उसको रेडी क्यू में डालेंगे या सस्पेंडेड लिस्ट से उसको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर P4, हाँ, इस सस्पेंडेड लिस्ट से आपको हम पहले किसको निकालना पड़ेगा, P4 को। तो आपने क्या किया, अब आपने रेडी क्यू में क्या डाल दिया, P4, राइट। अब P4 आपने निकाला, अब देखिए सेमाफोर की वैल्यू -1 है। अब P4 कोशिश करेगा वापस से अपने कोड चला के और वेट कोड चलाएगा, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है -1 है अभी फिलहाल, -1 से -2 जाएगी, तब भी वो वापस से स्लिप में चला जाएगा। तो अब ये कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो यहाँ पर माइनस वैल्यू है, तो वैसे भी वो आप क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा, राइट। अब नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस है P2 ने क्या किया, P2 ने अपना क्रिटिकल सेक्शन खत्म किया और अब उसके बाद वो बाहर आना चाहता है, बाहर आ सकता है, पर बाहर आने के लिए सिग्नल चलाना पड़ेगा, सिग्नल चलाने के लिए वो ये कोड चलाएगा। इस कोड को जब वो चलाएगा तो यहाँ पर एस की वैल्यू क्या है, -1 है, एस वैल्यू -1 है, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर क्या हो जाएगी वैल्यू 0। तो जब ये 0 हो जाएगी और यहाँ कंडीशन चेक करिए कि एस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल और है, लेस देन और इक्वल टू, तो ये कंडीशन भी क्या होगी यहाँ पर, ट्रू। तो जब ये ट्रू होगी तो क्या करेंगे, हम करते हैं सेलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंड लिस्ट। अब ये सस्पेंड लिस्ट में P4 चला गया था बाहर, बचा गया था P5, अब एक ही प्रोसेस बचा है। इस प्रोसेस को हम निकाल के वेकअप करके कहाँ डाल देंगे, रेडी क्यू में। ये रेडी क्यू में जाएगा, डायरेक्ट ये क्रिटिकल सेक्शन के लिए ट्राई नहीं करेगा, पहले हम इसको रेडी क्यू में डालेंगे और उसके बाद वो क्रिटिकल सेक्शन के लिए ट्राई करेगा। नाउ ये भी आपका प्रोसेस क्या चला गया, ब्लॉक लिस्ट से बाहर चला गया, ब्लॉक लिस्ट से बाहर चला आके कहाँ चला गया, रेडी क्यू में। Now this value becomes S value becomes 0. Now P3 is try to get out from the critical section, क्योंकि P3 ने भी अपना critical section का कर लिया, काम कंप्लीट कर लिया और वो भी बाहर आना चाहता है, आ सकता है। सिग्नल प्रोसेस को चलाएगा, सिग्नल प्रोसेस चलाया उसने, सिग्नल प्रोसेस को चलाया तो यहाँ पर सिग्नल ऑपरेशन को चलाया, तो यहाँ पर आपका 0 जो था 0 + 1 हो गया, 0 + 1 हो गया, मतलब ये 1 हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर ये देखिए, इफ एस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 1, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 0, नो। अब ये क्या होगी, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। तो फॉल्स के बाद ये क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, मतलब वो आपका क्रिटिकल सेक्शन बाहर चला गया। अब यहाँ पर P4 और P5 मतलब P1, P2, P3 तीनों अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ पर कोई भी प्रोसेस नहीं है, एस की वैल्यू 1 है और रेडी क्यू में P4, P5 है। Now P4 will try to get into critical section। अब यहाँ पर आपको जो 1 है, जो S है वो 1 मिलेगी, इसकी वैल्यू 1 मिलेगी और उस वैल्यू से जब माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 1 - 1 0 इज नॉट लेस देन 0, तो ये क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। Now P4 can get into the critical section। So in this way this counting semaphore works and thus wait and signal operation performs. Now it is very important topic, semaphore is very important topic in operating system in terms of university exam or some competitive exams. Most of the or interview also they ask every time or every exam the question from a semaphore always comes। हमेशा semaphore से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जनरली गेट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सपोज एस की वैल्यू अभी मे बी 8, सपोज मान लेते हैं 8 है और अभी आपको परफॉर्म करना है 5P ऑपरेशन, राइट, 3V ऑपरेशन, 7P ऑपरेशन एंड सपोज 4V ऑपरेशन, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, P मतलब दिस ऑपरेशन, P मतलब दिस ऑपरेशन एंड V मतलब दिस ऑपरेशन।
मतलब हम P में क्या करते हैं, इवेट में क्या करते हैं, हमेशा सीमाफोर की वैल्यू को 1 से माइनस करते हैं और सिग्नल में हमेशा S की वैल्यू को 1 से प्लस करते हैं। तो यहाँ 5T का मतलब क्या है, इनिशियली 8 की वैल्यू, S की वैल्यू 8 है, तो इसमें हमने क्या कर दिया, 5 को माइनस कर दिया, तो ये क्या हो गया 3, राइट। अब इसमें हमने 3V ऑपरेशन परफॉर्म किया, V मतलब सिग्नल, तो हमने क्या किया, इसमें 3 टाइम प्लस कर दिया, नाउ इट बिकम 6। नाउ सी P 7P ऑपरेशन मतलब 7 माइनस, what is the value of this is -1. now 4V operation मतलब plus V, sorry plus 4, तो what is this, what it becomes 3, ये हो गया आपका +3। तो +3 means again there may be a 3 process can be in critical section. The question may be how many process in what will be the value of semaphore, or maybe how many process can be in critical section. This kind of question may be asked. If suppose this value not plus, if this will becomes suppose like -3 or maybe -4, whatever, so then we can say there are 3 operations in the suspended list. There are 3 process in the suspended list. There may be 4 operation in the suspended list. यदि plus है, there may be 3 process may be in critical section. So this type of question may come, and this is the solution. So this is all about counting semaphore. Thank you.